यू आर मोस्ट वेलकम टू द देवपद चैनल। आप सभी का देवपद एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग एडीआरई और भी जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, इसका हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का पहले हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फिर इससे रिलेटेड फॉर्मूला जानेंगे। तो प्रिंसिपल, तो पहले हम लोग जानेंगे प्रिंसिपल क्या होता है। तो प्रिंसिपल, द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, अमाउंट ऑफ मनी बोरोड, बोरोड मतलब जो हम लोग उधार में लेता है, is called प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल क्या है? द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। कि जो अमाउंट बोरोड मतलब उधार में लेता है, सपोज कोई ₹1000 किसी से लिया, तो 1000 यहाँ क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। अगर 2000 सपोज लिया तो 2000 क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल। दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ मनी बोरोड इज कॉल्ड प्रिंसिपल। द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर, तो एडिशनल मनी मतलब एक्स्ट्रा मनी जो पेड करता है, इज कॉल्ड इंटरेस्ट। सपोज ₹1000 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सपोज 10% है फॉर 2 ईयर के लिए, फॉर 2 ईयर्स। तो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स ऑन ₹100, इट इज 10। 1000 कितना हो जाएगा? 100। फिर 2 ईयर्स के लिए कितना हो जाएगा? 200। तो 200 जो है एक्स्ट्रा दिया, तो एक्स्ट्रा जो 2 दिया, जो एडिशनल मनी, दिस कॉल्ड व्हाट? इंटरेस्ट। सो व्हाट वी हैव लर्नड, number 1 principal, the amount of money borrowed is called principal. Suppose a person has taken 1000 as a loan, it is will the principal. Another person has taken 2000 as a loan, it is called principal. And interest, the additional money paid by the borrower is called interest. Suppose a person has taken 1000, but after 2 years at the rate of interest 10%, he has to pay, total is what? He has taken 1000 plus interest, that means 200 he has to pay extra amount, और ये जो 200 एक्स्ट्रा अमाउंट है, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। ना अमाउंट क्या है? द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड अमाउंट। द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज कॉल्ड amount. The sum of principal and interest is called amount. So amount equal to principal plus interest. Suppose a person has taken ₹2000 as a loan, rate of interest is 10% and for 1 year. Now 10% rate of interest means what? The interest on ₹100 for 1 year is 10. So 1000 is 100, 2000 is 200. Here interest is what? 2000, 200. So after 1 year, how much he has to pay? This is 2000 principal
plus interest 200. That means this is a what? 2000 plus 200. How much you have to pay? 2200. And this is called what? Amount. He has taken 2000 as a loan. This is principal. This is rate of interest. This is time. Now how much interest he has to pay? 200 pay करना पड़ेगा. So 2000 principal, including this, he has to pay extra interest also. So total he has to pay 2200. And this 2200 is called what? Amount. Amount is the sum of principal and interest. Now time. The durations for which the money is borrowed is called time. That means जितना टाइम के लिए कोई मनी बोरो करता है, मतलब उधार में लेता है, इज कॉल्ड व्हाट? टाइम. सपोज कोई लोन लिया 5 years के लिए, तो टाइम क्या हो जाएगा? 5 years. जैसे कोई कार लोन होता है, कोई 5 years के लेता है, तो टाइम क्या हो गया? 5 years. कोई मैक्सिमम कितना होता है? 7 years होता है. 7 years के लिए लिया तो टाइम कितना हो जाएगा? 7 years. So the durations for which the money is borrowed is called time. Now rate of interest, the interest on ₹100 for 1 year is called rate of interest per annum. कि rate of interest, suppose 10% rate of interest, PA. PA means per annum. Per annum means what? Per year. So what does it mean? It means that the interest on ₹100 for 1 year equal to ₹10. So rate of interest means interest on rupees for 1 year. It is called rate of interest. The simple interest, when interest is calculated on original principal for any length of time. Any length of time is time 1 year, 2 year, 3 years, 4 years, कुछ भी हो सकता है. लेकिन इंटरेस्ट ओनली किस पर होता है? ओरिजिनल प्रिंसिपल. ओरिजिनल प्रिंसिपल में क्या? जो अमाउंट लोन में लिया, सपोज 1000 लोन में लिया तो 1000 का इंटरेस्ट होगा 1 year, 2 year, 3 years तक. 5000 इंटरेस्ट में लिया तो 5000 का 1 year, 2 year, 3 year तक इंटरेस्ट होगा. देन इट इज कॉल्ड व्हाट? सिंपल इंटरेस्ट. सो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट? व्हेन इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन original principal for any length of time, it is called simple interest. There are mainly 2 types of simple interest and compound interest, and in this chapter we'll discuss about only simple interest. और इस सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड सम जो है, क्वेश्चन जो है, सभी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ADRE हो, SSC हो, रेलवे हो या मैक्सिमम बैंक हो, सब में इससे रिलेटेड क्वेश्चन सब आता है. तो पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर इसके रिलेटेड का फॉर्मूला सीखेंगे, फिर उससे फॉर्मूला पे बेस पर हम लोग सॉल्यूशन सम्स करेंगे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एंड टिप्स. इस मतलब कुछ टेक्निक होगा जिससे हम लोग कम टाइम में इसका जो आंसर निकाल सकता है. तो फर्स्ट फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट SI. SI मीन सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T/100. So here SI simple interest, P principal, or rate of interest, T time and 100. Then from this, इसी से हम लोग P निकालेंगे, 100 इधर जाएगा, simple interest into 100 और R into T इधर से क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, तो R into T. फिर इसी से हम लोग क्या निकाल सकता है? R क्या होगा? सेम सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100. इधर क्या आ जाएगा? P है, T आ जाएगा, P इंटू T. फिर नंबर 4 क्या हो सकता है? T इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई, अब T यहाँ रह गया तो क्या होगा? P इंटू R. तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, P आ गया, R आ गया, T आ गया. नंबर 5 अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. इंटरेस्ट सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, P प्लस I. नंबर 6 I इज इक्वल टू A माइनस P. एंड नंबर 7 P इज इक्वल टू A माइनस I. या यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पड़ा, सिंपल इंटरेस्ट से लिख लो, सिंपल इंटरेस्ट इज सिंपल इंटरेस्ट.
So important formula, number 1 simple interest equal to P into R into T by 100. Number 2 P equal to simple interest into 100 by R into T. R simple interest into 100 by P into T. T simple interest into 100. ये इधर आ गया P into R. A equal to principal plus SI. SI means what? Simple interest. And simple interest is amount minus principal, and principal equal to amount minus simple interest. SI. What is SI? Who can give the answer? कौन बोलेगा इसका आंसर? SI क्या है? SI simple interest. Very good. SI क्या है? Simple interest. Next, P. What is P? Who can give the answer? What is P? P is principal. Then R. R क्या है? What is R? Rate of interest. Then T. T is what? Time. Here time may be in years or months or days. Then A. A equal to what? Amount. So SI means simple interest, and P principal, R rate of interest, T time, A amount. SI simple interest, P is the principal, R is the rate of interest, and T is time, A equal to amount. तो आज हम लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम या असम में जो अभी ADRE एग्जाम होने वाला है, इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशंस और फॉर्मूला के बारे में सीखा. तो आप लोग ये डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझ लो, उसके बाद में फिर फॉर्मूला को लर्न कर लीजिए. तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग इससे रिलेटेड सम करेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो.